Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to continue the questions of chapter component of food. Here we are discussing the multiple choice questions. Here question number 1 is disease that occur due to the lack of food, nutrients over a long period are called. Listen, due to the nutrient जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, लैक होता है कि किस चीज की कमी होना, और ये जो लैकनेस है वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए हो, दैट इज कॉल्ड डिसीज. सो हियर व्हाट इज हियर, वी कॉल्ड इट, what we called it deficiency, right? The disease that occur due to the lack of nutrient over long period are called deficiency diseases. Now here let's see the explanation. Disease disease that occur due to the lack of nutrient over long period, we called it deficiency disease. Now here the next question is question number 2. Repeated washing of rice and pulses may remove some unpresent in them. रिपीटेड वॉशिंग, अगर आप राइस और पल्सेस को बार 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 क्या करते हैं, वॉश करते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर, किस चीज का वहां पर प्रेजेंस खत्म हो जाता है. सो हियर रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मे रिमूव व्हाट दे रिमूव विटामिन्स एंड मिनरल्स, बोथ. उनके विटामिन और मिनरल खत्म हो जाते हैं, बोथ ए एंड बी, राइट? Vitamin and mineral which is present in them they removed, right? Now here question number 3. Get lost in the presence or process of cooking and preparation. क्या चीज है जो खत्म हो जाती है जब आप कुक करते हैं या आप कुछ प्रिपेयर करते हैं? सो इन कुकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द फूड न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट, राइट? वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, राइट? नाउ here next question number 4. What happen if excess water is used during cooking and is then thrown away? अगर हम क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट में वाटर को यूज करते हैं कुकिंग के टाइम पर और फिर उसको थ्रो कर देते हैं, सो व्हाट हैपन? क्वेश्चन नंबर 4 हियर. मैनी यूजफुल प्रोटीन, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो यूजफुल प्रोटीन होते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स दे गेट लॉस्ट, वो क्या हो जाते हैं, उसमें खत्म हो जाते हैं, right? So here many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used. अगर excess में क्या करा जाए, पानी को use किया जाए, right? Now here, right? So option number C is correct here. This C is correct. Now here question number 5. How do we get most of the water that our body need? हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो पानी होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? So here options are the liquid we drink such as water, milk and tea. We add water to most cooked food. अगर हमें ज्यादा पानी चाहिए तो हमें अधिकतर खाने में पानी यूज करना चाहिए. Many food material that we eat themselves contain water. जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसके अंदर ही अपने आप में पानी क्या होता है, कंटेंट होता है, राइट? सो हियर ऑप्शन इज all of these. Through all of these given statement, we get most of the water that our body needs, right? Now question is how many meals does a child take every day? कितनी बार खाना खाना चाहिए? So here options are 7, 4 and 3. So how many times? 3 times, right? सुबह का खाना, दोपहर का और शाम का, right? Your breakfast, your lunch and then dinner. Now question is what food items we eat in our lunch? हमें लंच में क्या खाना चाहिए? कर्ड, रोटी, दाल, बिस्किट, मिल्क, ओनली फ्रूट, all of these. So here curd, roti and dal, right? So this option number A, that is a correct one. Now question is how many groups can be classified of nutrient required by our body? How many groups can be classified of nutrient? Nutrient को हमने कितनी पार्ट में डिवाइड किया है? So we here divide it into 7 parts. How many parts here? 7 parts. So 7 groups can be classified as nutrient required by our body. Now question is dash are made up of carbon,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या चीज है जो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, राइट? सो इट इज व्हाट? इट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, राइट? नाउ हियर the excess carbohydrate are mainly stored in the body as, हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती है एक्सेस अमाउंट में, वो कहाँ पर होती है, राइट? वो कैसे, किस तरह से प्रेजेंट होती है? एज अ कैल्शियम, एज अ प्रोटीन, फैट्स, roughage. So here how it is present? It is present as a fats, right? So what is the explanation of it? The excess carbohydrate are mainly stored in the body as a fat, right? जो भी ऐसा होगा हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता जाएगा। नाउ हियर कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होती है? शुगर, स्टार्च, then both A and B and none of these. So here we have sugar and starch, right? शुगर में भी प्रेजेंट होती है, शुगर के केस में भी, और किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में भी ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। देखो वो एक्सेस में है, राइट? और जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है ये वो है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, शुगर एंड स्टार्च, राइट? सो हियर ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी, carbohydrate are present in the form of sugar and starch, right? The human body is made up of amino acids and constitute all protein of the body. ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कैसे मिलके बनती है, किससे मिलके बनती है? अमीनो एसिड्स एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑल द प्रोटीन्स। सो इट इज मेड अप ऑफ कितनी प्रोटीन, कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? देयर इज 20 अमीनो एसिड, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। सो हियर आंसर इज 20। द ह्यूमन बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, राइट स्टूडेंट्स, राइट? Now, question number 13 here. Dash are the body building food. देखो फैट्स, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन कौन से ऐसे होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनती है? दैट इज प्रोटीन हियर। प्रोटीन दे आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे जिनसे हमारी बॉडी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है? हमारी बॉडी का ग्रो होना तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन प्रोटीन। What is the similarity of carbohydrate and fat? कार्बोहाइड्रेट में और फैट में क्या सिमिलरिटी होती है? सो हियर द आंसर इज बोथ हैव ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि तीनों में ही यहाँ पर दोनों में ही क्या क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है और साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, राइट? सो हियर both have oxygen, carbon and hydrogen, both have this. So option number this is correct, right? C is correct. Now question number 5 here. What is the main difference between carbohydrate and fat? Carbohydrate और fat में क्या difference होता है? So here the amount of oxygen is less in fat as compared to carbohydrate. The amount of oxygen is more in fat. The amount of oxygen is same in fat, right? तो आप देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेस होता है किसके अंदर? फैट्स में एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का अमाउंट फैट में कम होता है, कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा होता है, राइट? नाउ हियर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर, दिस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस हियर। क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर हियर, डू ऑल मील्स कंसिस्ट ऑफ अ सेम फूड आइटम? क्या सभी तरीके जो सारे के सारा खाना होता है उसमें फूड आइटम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं? सो हियर आंसर इज नो। नो ऑल मील डू नॉट हैव सेम फूड आइटम, सब में अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, राइट? नाउ व्हाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम? क्यों ऐसा होता है कि मील के अंदर डिफरेंट आइटम होता है? सो मील शुड हैव अ डिफरेंट फूड आइटम बिकॉज आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारी बॉडी को हर तरीके का खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए ताकि हमें अलग अलग तरीके का क्या हो, न्यूट्रिएंट हमें मिल सके जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑल द फूड्स कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट? क्या सभी खाना जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर सभी तरीके का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? सो हियर नो, आंसर इज नो। नो ऑल फूड डू नॉट कंटेन still the nutrients required by our body। तो सारा जितना भी फूड होता है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते। नेम टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर
फूड। हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं दो तरीके की जो टाइप होती हैं उनके नाम बताओ। सो दैट इज आंसर इज स्टार्च एंड शुगर। हमारी बॉडी में स्टार्च प्रेजेंट होता है, साथ में क्या प्रेजेंट होता है, शुगर भी प्रेजेंट होता है, राइट। नाउ हियर क्वेश्चन इज व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सो द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी को जहां से एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, राइट। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। CHO, याद रखिए CHO। Now question is what happen when two or more drop of iodine solution fall on starch solution। starch containing जो भी substance होगा, अगर उसके ऊपर आयोडीन के सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप अगर आप डाल देते हैं, द कलर ऑफ द सब्सटेंस, जो भी कलर होगा वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होता है। If any food item give blue black color with iodine, then which nutrient is present in the food? अगर कोई फूड आइटम है जिसमें ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है आयोडीन के साथ, तो कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, दैट इज स्टार्च विच इज प्रेजेंट इनटू इट, राइट। स्टार्च का ही हमने बताया है। स्टार्च को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन। आयोडीन की ड्रॉप डालने पर कलर क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। नेम 2 सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। ऐसे 2 सब्सटेंस बताओ जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आंसर इज पोटैटो, राइस, व्हीट, मेज एंड शुगर, राइट। नाउ नेम द फूड न्यूट्रिएंट इंडिकेटेड बाय एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। ऐसे खाने का नाम बताओ, ऐसे फूड न्यूट्रिएंट बताओ जो ऑयल पैच के बारे में बताए। तो एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट। किसकी प्रेजेंस बताती है, फैट की, कि इस खाने के अंदर क्या होगा, फैट प्रेजेंट होगा। जैसे आपने ऑयल में देखा होगा, आपकी खाना खाते हैं तो जो ऑयल पैच होता है वो आपकी शर्ट पे या कोई भी आपकी जो वियर्स होती है उसके ऊपर पड़ जाता है। तो इसका मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑयल और फैट प्रेजेंट है, राइट। नेम टू एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। एनर्जी प्रोवाइडिंग ऐसे न्यूट्रिएंट जिससे आपको एनर्जी मिलती हो। सो दैट इज हाइड्रोजन एंड फैट्स, राइट। Right students, so these are the questions, very short question answer. Now let's understand short question answer. Question is what are nutrients? What are nutrients? That is your chapter name जो अभी हमने डिस्कस किया। The component of food which are needed by our body for the growth and development are called nutrients। ऐसे component जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। लर्न इट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है वो। दे कंप्लीटली कंप्लीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी so that they are called energy providing food। हमारी बॉडी में जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट अगर कंटेनिंग फूड को हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो इसका मतलब इससे हमें एनर्जी मिली, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, राइट। नाउ राइट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप बताओ ऐसा टेस्ट बताओ जिससे स्टार्च के प्रेजेंट हो। अभी हमने डिस्कस किया था, क्या था, टेक ए पीस ऑफ अ फूड आइटम, उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की, राइट। इफ द कलर ऑफ द फूड आइटम बिकम ब्लू ब्लैक, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाए, देन इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो किसकी प्रेजेंस आएगी, स्टार्च की प्रेजेंट आएगी, राइट। नाउ हियर फूड प्लस आयोडीन अगर ब्लैक ब्लू हो जाए तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। फूड प्लस आयोडीन अगर वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है, तो प्रोटीन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट। प्रोटीन हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं उनको, बॉडी बिल्डिंग। देखो हमने दोनों चीजों को पढ़ा कि हमारी बॉडी में विटामिन क्या करते हैं, प्रोटीन्स क्या करते हैं, राइट। तो दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल, राइट। दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो तो कौन काम करता है, दे वर्क ऑन इट। प्रोटीन्स मेक आवर नेल्स,
हेयर्स एंड मसल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारी नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं और मसल्स होती हैं, वो किसकी हेल्प से बनती है? प्रोटीन की हेल्प से ही हम उनको बनाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड आइटम। किसी भी फूड में आप प्रोटीन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो हियर क्वेश्चन इज, हियर आंसर इज, take a small quantity of take a small quantity of food item। पहले जो भी फूड आइटम है उसको लेंगे। इफ द सैंपल इज सॉलिड, ग्राइंड इट, उसको ग्राइंड कर दो। पुट सम पार्ट ऑफ इट इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसका छोटा सा पार्ट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, उसको शेक करेंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब उसमें क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट। एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा to the test tube, right? Now shake well and place the test tube in the test tube. Stand for a few minutes. So now observe the color. So if the color of the content turn violet, किस चीज का हो गया? Violet color का। इसका मतलब क्या प्रेजेंट है उसमें? प्रोटीन प्रेजेंट है, right? Clear students? Now what are fats? Fats क्या होते हैं? So here the energy rich source of a food, ऐसे जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है? एनर्जी होती है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? फैट्स बोलते हैं। नेम सम फूड कंटेनिंग सब्सटेंसेस एज फैट कंटेनिंग। ऐसे बनाओ, ऐसी सब्सटेंसेस बताओ जिसमें फैट होता है। तो दे प्रोवाइड एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल टू द बॉडी। ऑल टाइप ऑफ नट्स, मस्टर्ड सीड्स, मिल्क एंड बटर, दे आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर फैट कंटेनिंग foods, right? Fat containing items. Now here you can see carbohydrates. Fats also contain carbon, hydrogen and oxygen, but fat contains, क्या करता है? Less oxygen, right? दोनों में ही तीनों चीजें पाई जाती हैं। कार्बन में भी, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट में भी और फैट्स में भी। कार्बन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट हियर वी ऑब्जर्व कि फैट के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है? लेस होता है, राइट। नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ फैट। तो अभी हमने किया, फैट को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं? टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ अ फूड आइटम, रब इट ऑन द पीस ऑफ अ व्हाइट पेपर। अब आप क्या करो? उस अमाउंट ऑफ फूड को व्हाइट के पेपर के ऊपर क्या करना? ड्रॉप करना शुरू कर दो। ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड दैट द पीस ऑफ व्हाइट पेपर शोज एन ऑयली पैच। अब उसके ऊपर क्या होगा? ऑयल का एक पैच बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या प्रेजेंट है? उसमें फैट प्रेजेंट है। Now next is what are vitamins? Vitamins क्या होते हैं? Right, the various kind of vitamins. आपको क्या करना है? अलग अलग तरीके के जो vitamins है उनको लिखना है। So here they are the protective compound with no energy level. Right? इनके अंदर एनर्जी नहीं होती। दे हेल्प इन द प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग एंड आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बहुत कम क्वांटिटी में जरूरी होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, vitamin B complex, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. These four are the vitamins, various kind of vitamins which is present in our food items, right? Now here we have a long question. List various type of nutrients and write the function of each. See here, we have here कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। दे आर मेनली एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। क्या होता है? उसके अंदर एनर्जी होती है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है फैट्स। फैट्स में क्या प्रेजेंट होता है? दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है इससे, राइट। दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होती है इफ कंज्यूम इन द सेम अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। एनर्जी गिविंग कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। प्रोटीन वाले कौन से होते हैं? बॉडी बिल्डिंग वाले कौन से होते हैं? प्रोटीन होते हैं, राइट। प्रोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट। हमारी बॉडी की जो भी डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। जैसे स्किन, हेयर, मसल्स, एंजाइम, ये सारे के सारे क्या है? हमारे प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट द डिसीज। हमारे डिसीज से बचाने के लिए क्या होता है? ये यूजफुल होता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स आर असेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन द गुड हेल्थ। क्या करता है? ये हमारी हेल्थ को भी बना के रखता है, राइट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? राइट द कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट विच प्रोवाइड द राइट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आर बॉडी नीड अलोंग विद द रफेज एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जिसमें सब कुछ हो, सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हो, जो हमने बात करी कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन की, मिनरल्स की, राइट,
उसके अंदर रफेज भी होना चाहिए, उसके अंदर पानी भी होना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारी बैलेंस डाइट के ही पार्ट होते हैं, राइट। तो ये हमारा गिवन है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपेयर अ चार्ट टू show various vitamins and minerals and disorder caused by them. So first of all we have a vitamin A, that is retinol. It causes night blindness, अगर ये कम हो जाए तो night blindness होती है. Next is B1, thiamine बोलते हैं इसको. Then it's cause beriberi, right. B2, riboflavin, it's retarded growth and bad skin. B12, it's cyanocobalamin, right, it's cause anemia. Then C, it's ascorbic acid. It causes scurvy. D, calciferol. It causes ricket. इनकी deficiency, right? इनकी कमी से ये disease हो सकते हैं. K, it's phylloquinone. It's excessive bleeding due to injury. अगर injury हो जाए तो हमारी body के अंदर bleeding होना शुरू हो जाता है. Type of minerals, we have a deficiency diseases. Then we have here calcium. Calcium, it's brittle bone and excessive bleeding, right. Now we have a phosphorus. ये phosphorus है, तो phosphorus क्या करता है, बैड टीथ हो जाते हैं और बोन्स हो जाती है. आयरन की अगर कमी हो तो अनेमिया हो जाता है, राइट. आयोडीन की अगर प्रॉब्लम हो तो गोइटर, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो जाता है. कॉपर अगर कम हो तो लो एपिटाइट हो जाता है और रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है. तो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू द कंपोनेंट ऑफ फूड. Hope you like the video. Please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the updates of the new upcoming videos. Thank you. Bye bye.